Hello everyone, this is me Bhavna and today we are going to do current affairs for 14th June 2020. These have been compiled from all the possible current affairs sources which include the Indian Express, the Hindu, PIB and all the other important news sources. Let's start with the news for the day. So here comes our first news of the day. The first news is the Union Minister for Agriculture and Farmers Shri Narendra Singh Tomar has launched Sehkar Mitra, which is basically an internship program. So this is a scheme of National Cooperative Development Corporation. Under this internship program, professionals who have completed their MBA degrees in agribusiness, cooperation, finance, international trade, forestry, rural development and project management, etc., will be eligible for application. Okay, so people for why has this scheme been launched? So this is actually in line with Prime Minister Narendra Modi's आत्मनिर्भर भारत, दैट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया. ठीक है, और इसमें क्या चीज है, इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन रीजन क्या है? इससे क्या होगा? इट विल प्रोवाइड द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स एक्सेस टू न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, while in return interns would be getting a stipend. Okay, so the managing director of NCDC is Sundeep Kumar Nayak and its headquarters are in New Delhi, India. Okay, एंड सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आती है तो मेक श्योर आपको उनके हेडक्वार्टर्स और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में या जो भी उनके चेयरमैन सीईओ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, चलो now let's move on to the next news of the day. So our second news for the day is measures to be taken by states, UTs, cities, metro rail companies in view of COVID-19 for providing urban transport services. तो बेसिकली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि जिसके हमारे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एडवाइजरी इशू करी है स्टेट्स, यूटीज और सिटीज को और मेट्रो रेल कंपनीज को, जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि अब जैसे कोविड-19 से लॉकडाउन खुल रहा है, वी आर इन अनलॉक 1.0, तो थ्री pronged strategy they have, the ministry has advised that these organizations should these, sorry, not organizations, states, UTs, cities and metro rails companies should follow three pronged strategy which should be adopted in a phased manner. तो इसमें थ्री pronged strategies कौन सी हैं? शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी जो 6 months के लिए, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फॉर 1 year एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर 1 to 3 years. तो इस एडवाइजरी में दे हैव encouraged the use of non motorized transport. By non motorized transport, as we can understand from the name, इसका मतलब वो है कि it includes basically walking, cycling, cycle rickshaws, ठीक है, push carts और जो other form of mobility है जो humans which are basically powered by humans. ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिकमेंड्स कर लीजिए. उसके बाद कह रहे हैं टेक्नोलॉजी यूज करिए फॉर टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ वायरस, जैसे कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड इंडिजिनियस कैश और टचलेस पेमेंट सिस्टम. ठीक है, जैसे भीम है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है. एनसीएमसी, दैट इज द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, उसका उपयोग में लाइए. सो दीज आर सम मेजर्स दैट हैव बीन suggested by Ministry of Housing and Urban Affairs. Okay, now let's move on to the next question. Sorry, the next news for the day. So the next news for the day is Standard S&P retains India's sovereign rating and outlook at triple B. तो स्टैंडर्ड एंड पुअर एक रेटिंग एजेंसी है जो कि कंट्रीज की और कंपनीज की रेटिंग करती है कि वो कितनी क्रेडिट वर्दी हैं. ठीक है, तो उसने क्या कहा है, उसकी इंडिया की जो रेटिंग है वो ट्रिपल बी है एंड इट इज सफिशिएंट टू मीट इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. तो इंडिया एज अ कंट्री कैन मीट इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. तो उसने ये भी कहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन एक्सपीरियंस करेगी. 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर में 5% रहेगी और नेक्स्ट में जीडीपी जो है रिबाउंड कर सकती है 6% तक, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज फॉर द डे. तो हमारी फोर्थ न्यूज ऑफ द डे है एनएचएआई बिकम्स द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू गो फुली डिजिटल. तो एनएचएआई जो कि एक, पहली बात तो जब भी कुछ ऐसा हो एक्रोनिम्स जरूर याद रखिएगा. एनएचएआई, सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर फंक्शन करती है. It has gone fully digital. So by going fully digital, matlab it has launched its unique cloud-based and artificial intelligence-powered big analytics platform by the name Data Lake and Project Management Software. ठीक है, और अब इससे क्या होगा, जितना भी वर्क फ्लो है एनएचएआई का सब कुछ ऑनलाइन होगा, सब कुछ डिजिटली होगा. ठीक है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, कॉन्ट्रैक्चुअल डिसीजंस है, ऑल विल बी डन डिजिटली. सो
व्हाट इज एनएचएआई? बेसिकली एनएचएआई क्या है? एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जो कि हम पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर फंक्शन करती है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे। द चेयरमैन ऑफ एनएचएआई इज सुखबीर सिंह संधू। और अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? ओके, I'm repeating my question. So you are going to type down in the comment section, who is the Union Minister of Road Transport and Highways. Now let's move on to the next news. So next news हमारी ये है, 3-member high level committee has been set up by the Petroleum Ministry to inquire about the Assam oil leak. So on 8 June 2020, बागजान fields जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में है, वहां पर देयर वाज एन अनकंट्रोलेबल फायर, जिसके रिस्पांस में सेंट्रल गवर्नमेंट को एनडीआरएफ भी जो कि हमारी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसको तक डिप्लॉय करना पड़ा था। और उस फायर में देयर वाज अ डेथ, देयर एक्चुअली 2 फायरमैन वर आल्सो किल्ड एंड इट इंजर्ड वन पर्सन। तो इसी को पूरे मैटर को आप कह सकते हैं स्टडी करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई है, विच इज अ 3-member हाई लेवल कमेटी। और हमेशा कमेटी जब भी बिठाई जाती हैं तो उसके हेड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे जो हैं इस कमेटी के हेड हैं एस.सी.एल. दास, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें 2 और मेंबर्स हैं, बी.सी. बोरा एंड टी.के. सेनगुप्ता। ठीक है जी। और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो ये जो बागजान फील्ड्स हैं, दिस इज बेसिकली ओन्ड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। और ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसके हेडक्वार्टर्स हैं असम में और इसके चेयरमैन हैं सुशील चंद्र मिश्रा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज। तो हमारी 6th न्यूज ऑफ द डे है, enhanced import duty on bamboo sticks। तो सेंट्रल गवर्नमेंट has increased import duty on bamboo sticks from 10% to 25%। ठीक है, and why has this been done? So this has been done so because though India is the second largest producer of bamboo in the world, but it is ironically also the second largest importer of bamboo and its products। तो ये जो import duty हाई की गई है 10% से 25%, this has been basically done to curb heavy import from China and encourage local manufacturing agarbatti and bamboo industries। Okay, तो bamboo is also known as green gold। Okay, just remember this thing, bamboo को green gold भी कहा जाता है। ठीक है, with this, let's move on to the next news. So the next news is, railway sets world record by running the first double stack container train in electrified territory। तो रेलवेज ने क्या किया है? इंडियन रेलवेज ने एक नया बेंचमार्क, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। उसने फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन रन करी है इन हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द इंटायर वर्ल्ड। एंड इससे क्या होगा? इससे जो रेलवेज का एक टारगेट है कि ग्रीन इंडिया, उसको भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल। ओह यार, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओवरहेड इक्विपमेंट बेसिकली क्या होता है? आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स होती हैं आपकी, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, उसके ऊपर एक वायर जा रही होती है विच इज यूज टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। तो दैट इज नोन एज द ओवरहेड इक्विपमेंट। ठीक है, तो रेल, अच्छा, और ये रिकॉर्ड कहाँ सेट किया गया है? ये रिकॉर्ड सेट किया गया है आपका पालनपुर और बोताड स्टेशन, जो कि गुजरात में है, वहां पे। वो सॉरी, मैं ये मेंशन करना भूल गई, तो आप प्लीज इसका नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ सेट किया गया है। इट हैज बीन सेट इन पालनपुर और बोताड स्टेशन, गुजरात में। ठीक है, विद दिस लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज। तो हियर कम्स द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे, और यहाँ पर हमारे 2 अवार्ड्स हैं। तो पहला हमारा वर्ल्ड फूड प्राइज है, जो कि हमारा जिसको हम नोबेल प्राइज इन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, एंड दिस हैज बीन वन बाय डॉक्टर रतन लाल, हु इज एन इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट। ठीक है, तो एमिनेंट इंडियन अमेरिकन और सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल was named this year's recipient of World Food Prize. So he has been awarded for developing and mainstreaming a soil-centric approach to increase the food production। कि मतलब उन्होंने ऐसी अप्रोचेस बनाई हैं जिससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए और सॉइल की क्वालिटी को भी हार्म ना किया जाए। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो नोबेल प्राइज इन एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट की कंसिडरेशन में लिया जाता है। देयर इज नो नोबेल प्राइज इन एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है। तो यस, सो दिस कम्स टू माय सेकंड क्वेश्चन, जो आप मुझे बताएंगे। आप कमेंट सेक्शन में ये टाइप करके बताएंगे कि कितनी कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज इज गिवन इन हाउ मेनी कैटेगरीज?
ठीक है। तो जो ये वर्ल्ड फूड प्राइज है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन अलॉन्ग विद सम स्पॉन्सर कंपनीज। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, द नेक्स्ट न्यूज इज इंडियन म्यूजिशियन शोभा शेखर रिसीव्स द मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ये है कि इंडियन म्यूजिशियन है शोभा शेखर इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव द मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द क्वींस बर्थडे 2020 फॉर हर सर्विस टू इंडियन म्यूजिक एंड डांस। शी इज द फाउंडर ऑफ कलाकृति विच इज अ म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है क्या, मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज अवॉर्डेड टू इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर कम्युनिटी और टू ऑस्ट्रेलिया ग्लोबली और डोमेस्टिकली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। यहाँ पे हमारी स्टेट्स की इंपॉर्टेंट न्यूज स्टार्ट हो गई हैं, जो कि हमारी फर्स्ट न्यूज इसमें ये है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है। तो कभी भी कोई स्कीम लॉन्च होती है, कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई है स्कीम का लॉन्च, स्कीम किसने लॉन्च करी है, कब लॉन्च, कोई जैसे स्पेसिफिक डेट पे लॉन्च की गई है, जैसे कि जो ये बाल श्रमिक विद्या योजना है, दिस वाज लॉन्च्ड ऑन जून 12 बाय बिकॉज दैट वाज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, उस दिन लॉन्च की गई थी और इसमें स्पेसिफिकली किस कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है, फॉर चाइल्ड लेबरर्स हु आर 8 to 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। इस स्कीम का फाइनल एम क्या है, द स्कीम एम्स टू एजुकेट ऑर्फन्स एंड वर्कर्स चिल्ड्रन और चाइल्ड लेबर्स एंड इंश्योर देयर हेल्दी लाइफ। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी इसमें 1000 रुपीज पर मंथ टू द बॉयज एंड 1200 per month to the girls and children studying in 8th, 9th and 10th will be given 6000 per annum along with the monthly incentive. ठीक है। और beneficiaries and children of registered workers will also get education in Atal residential schools with free facilities. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है यूपी का लेबर डिपार्टमेंट करेगा बेसिस लिस्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। तो ये थोड़े से फैक्ट्स हैं यूपी के बारे में। कैपिटल इज लखनऊ एंड गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल। और ये आपको ये याद रखना है, योजना किसने लॉन्च करी है, कौन सी स्टेट से रिलेटेड है और कभी कोई स्पेशल डे पे लॉन्च करी गई है, ये मेन है, और क्या टारगेट है उसका योजना का। ठीक है। जैसे नेक्स्ट हमारी न्यूज है, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल अलॉन्ग विद हैदराबाद सिटी पुलिस लॉन्चेस अ प्रोग्राम कॉल्ड एज स्त्री फॉर विमेन। तो ये प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है, शी ट्राइंस थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड empowerment. Now this program has been launched in line with International Women's Day की जो थीम है। तो इस साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च और उसकी थीम क्या थी, ईच एंड इक्वल, ईच फॉर इक्वल। तो यहाँ पर जो ये प्रोग्राम है ये उसी थीम को दिमाग में रख के लॉन्च किया गया है। ठीक है। इट हैज बीन ideated on the lines of women empowerment to bring about a sustainable and impactful change by involving women in the community. ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज, तो हमारी नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे है, ओडिशा बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स। तो ओडिशा जो है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री बन गया है टू रिसीव आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर हॉस्टल्स मेंट फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ठीक है। तो जो एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट है ओडिशा का, उसने पहले एक मिशन लॉन्च किया था बाय द नेम मिशन सुविद्या, जिसमें उसने क्या किया था, टू इट एम टू प्रोवाइड ऑल ट्राइबल हॉस्टल्स ऑफ स्टेट्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और जो ये सर्टिफिकेशन है ना, ओडिशा का खुद का एक प्रोग्राम चल रहा है 5T के नाम से। और ये 5T क्या है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये 5T का जो फ्रेमवर्क है, ये क्यों ओडिशा ने स्टार्ट किया था, सो दे स्टार्टेड टू ब्रिंग इन ट्रांसफॉर्मेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल चेंजेस इन द स्टेट गवर्नेंस। तो बेसिकली गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए 5T प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो वहीं पर उसके अंडर ये मिशन सुविद्या लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या था, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स बनाए गए थे, जिनकी एक स्टैंडर्ड जो सेट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ प्रोवाइड किया गया था। और अब क्या है, उसको आईएसओ सर्टिफिकेशन भी ओडिशा को मिल गई है एंड इट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव दिस। So these are some facts about Odisha. Capital is Bhubaneswar, CM is Naveen Patnaik, and Governor is Ganeshi Lal. Next is a very interesting news.
तो कोविड-19 के चलते आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, बट कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ कैंसल्ड ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स टिल क्लास 5। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने किंडरगार्टन से लेके क्लास 5 तक की ऑनलाइन क्लासेस को स्टॉप कर दिया गया है। अभी बात चल रही है कि शायद ग्रेड 7 तक की भी वो स्टॉप कर दें। अभी ग्रेड 7 तक का पक्का नहीं है, but this has been stopped because a lot of complaint the government received a lot of complaints from parents regarding की फीस का भी और stuff like this। तो इसी चक्कर में कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो कैपिटल है कर्नाटका का बेंगलुरु और सीएम है बीएस येडियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारी न्यूज़ का आज की न्यूज़ का है इम्पोर्टेंट डेज़ का। तो 2 इम्पोर्टेंट डेज़ हैं जो हम करेंगे। वन इज़ द इंटरनेशनल एल्बिनिज़म अवेयरनेस डे एंड द सेकंड वन इज़ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। सो द फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 13th जून। एल्बिनिज़म बेसिकली एक रेयर, नॉन कंटेजियस और जेनेटिकली इनहेरिटेड आप कह सकते हैं डिज़ीज़ है जो कि बर्थ से प्रेज़ेंट होती है। इसमें होता क्या है, देयर इज लैक ऑफ पिगमेंटेशन। मेलेनिन एक पिगमेंट है जो हमारी बॉडी में कलर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेलेनिन की प्रोडक्शन बहुत कम होती है इन इंडिविजुअल्स में, और ये जेनेटिकली ही होती है। और इस वजह से क्या होता है, उनकी स्किन बहुत एक्सेसिव में वाइट पे होती है। और जब ये बिकॉज मेलेनिन प्रोडक्शन नहीं है तो इसीलिए क्या है, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं सन और ब्राइट लाइट को। एंड दिस इज वाई दे आर एट वेरी हाई चांसेस ऑफ बीइंग विजुअली impaired एंड प्रोन टू डेवलप स्किन कैंसर। और इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है, ठीक है। तो यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन इन 2013 calling for prevention of attacks and discrimination against persons with albinism। So 2020 थीम क्या थी, मतलब इस साल की थीम क्या है। कोई भी आप डे करते हैं इंटरनेशनल डे तो उसकी थीम जरूर साथ में करा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थीम वाज मेड टू शाइन, ठीक है। ये थीम चूज क्यों करी गई, टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट एंड सक्सेसेस ऑफ पीपल विद एल्बाइनिज्म वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हमारा है द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 14 जून 2020 को डब्ल्यूएचओ और बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो ब्लड डोनर, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे से सेलिब्रेट करेंगे। कोविड-19 की वजह से हेल्थ बहुत ज्यादा फोकस में है। सो दिस कुड बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। ब्लड डोनर डे का आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि कब ऑब्जर्व किया जाता है या थीम क्या थी। तो इस ईयर की थीम क्या है, सेव ब्लड सेव्स लाइफ, ठीक है। और स्लोगन है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर place। So some quick facts about WHO, which is the World Health Organization। इसके हेडक्वार्टर्स आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनॉम है। और ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे हैं पहले कोविड के फैलने में। इनको बहुत ही ज्यादा यूएस ने ब्लेम और काफी ज्यादा इनको क्रिटिसिज्म आया है। तो आपको ये नेम जरूर पता होना चाहिए। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज मेकर ऑफ 2020, ठीक है। नाउ विद दिस वील मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज ऑफ द डे। हाँ जी, तो न्यूज़ है फीफा की रैंकिंग आउट हो गई है और इंडिया की 108th रैंक आई है। तो the news says Indian football team has retained 108th spot in the latest FIFA ranking। So FIFA is basically an international governing body of Association of Football, ठीक है। तो ये जो है इंटरनेशनल फुटबॉल जो है अभी तो बिकॉज ऑफ कोविड आपको पता है सब कुछ ही सस्पेंडेड चल रहा है। तो यहाँ पर ये है कि इस रैंकिंग में बेल्जियम जो है टॉप पे है। इट हैज बीन फॉलोड बाय फ्रांस एंड ब्राजील, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंडियन फुटबॉल टीम इज सेट टू होस्ट एशियन चैंपियंस कतर ऑन October 8 in its next 2022 FIFA World Cup qualifying round game, which would be India's first international fixture amid द कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है जी। और फीफा के हेडक्वार्टर्स हैं ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। आई होप यू लाइक इट। और आप अपने कमेंट सेक्शन और प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको और कैसा लगा और कुछ अगर आप और चेंजेस देखना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे, प्लीज फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।